السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، الیکٹرو کیمسٹری میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 9 کو، اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے الیکٹرولیٹک سیلز۔ اچھا، الیکٹرولیٹک سیل سے پہلے اسٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ الیکٹرو کیمیکل سیلز کیا ہوتے ہیں۔ A cell consisting of two electrodes ایسا سیل، اسٹوڈنٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے برتن، ایسا برتن جو بنا ہوا ہو ٹو الیکٹروڈز دو الیکٹروڈز سے ڈپڈ جو ڈوبے ہوئے ہوں انٹو این الیکٹرولائٹ کسی الیکٹرولائٹ میں۔ الیکٹرولائٹ ایک سولوشن ہوتا ہے آئنز پر مشتمل، جیسا کہ یہ سوڈیم اور کلورائڈ ہو سکتا ہے۔ ان وچ اے کیمیکل ریئیکشن، جس کے اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتی ہے، یعنی الیکٹرو کیمیکل سیل ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر الیکٹروڈز لگے ہوتے ہیں۔ فرض کریں اسٹوڈنٹس یہ الیکٹروڈز ہیں، ٹھیک، یہ دونوں جو ہے یہ والا اور یہ دونوں الیکٹروڈز ہیں، جس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ کیمیکل ریئیکشن کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوسز الیکٹرک کرنٹ، یا تو وہ الیکٹرک کرنٹ کو پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک، بائی کیمیکل ریئیکشن، اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن کر کے اس سے بجلی بناتی ہے، اور یوٹیلائزز الیکٹرک کرنٹ، یا پھر یہ سیل استعمال کرتا ہے بجلی کو ٹو ڈرائیو اے کیمیکل ریئیکشن، چلانے کے لیے کیمیکل ریئیکشن کو، یا پھر اسے ہم باہر سے کرنٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جی ٹائپس۔ الیکٹرو کیمیکل سیل دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلا اس کے اندر ہے الیکٹرولیٹک سیل اور دوسرا اس کے اندر ہے گیلوانک سیل۔ تو آج ہم نے اسٹوڈنٹس پڑھنا ہے اس میں الیکٹرولیٹک سیل کو، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے گیلوانک سیل کو۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر، اور یہ ہے الیکٹرولیٹک سیل۔ الیکٹرو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں بجلی کو، اور لیٹک کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، یعنی بجلی گزار کر کمپاؤنڈ کو اس کے آئنز میں توڑ دینا۔ دی electrochemical cell electrochemical cell which utilizes an electric current، جو استعمال کرتا ہے الیکٹرک کرنٹ یعنی بجلی ٹو پروڈیوس کیمیکل ری ایکشن، اور ایک کیمیکل ری ایکشن اسٹارٹ کرتا ہے، از کالڈ الیکٹرولیٹک سیل، اسے کہتے ہیں الیکٹرولیٹک سیل۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا ڈائیگرام بنا کر سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اسے مزید ڈسکس کریں گے۔ یہ جو الیکٹرولیٹک اسٹوڈنٹ سیل ہوتا ہے یہ ایک برتن پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک، اب اس برتن کے اندر دو الیکٹروڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹروڈ اسٹوڈنٹس کاپر کے بھی ہو سکتے ہیں، سلور کے بھی ہو سکتے ہیں، میٹل یعنی لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس الیکٹروڈ کا نام ہے کیتھوڈ، جو نیگیٹو چارج رکھتا ہے، اور اس الیکٹروڈ کا نام ہے اینوڈ، جو کہ پازیٹیو چارج رکھتا ہے، ٹھیک۔ اب اس الیکٹروڈ کو فرض کریں ہم یہاں سے لے آتے ہیں اور اس کو ہم جوڑتے ہیں بیٹری کے ساتھ، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم اسے کرنٹ دیں گے ڈی سی کرنٹ، ڈائریکٹ کرنٹ سے۔ اسے ہم نے جوڑا بیٹری کے ساتھ، اور بیٹری کو پھر ہم نے جوڑا الیکٹروڈ کے ساتھ۔ اب اسٹوڈنٹس اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں بیٹری سے ہم کرنٹ دیں گے تو یہاں سے کرنٹ فلو کر کے اس سیل کے اندر جائے گا، اور اس سیل کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز کا سولوشن ہوگا، ٹھیک۔ اب پازیٹیو آئنز کیا کریں گے؟ یہ موو کریں گے کیتھوڈ پر نیگیٹو چارج کی طرف، اور نیگیٹو چارج والے آئنز جو اس برتن میں ہوں گے وہ جائیں گے اینوڈ پر، ٹھیک۔ پہلے تو ہم نے اتنا ہی ڈسکس کرنا ہے، چلے جی۔ تو ایگزامپل الیکٹرولیٹک سیل کے ہے ڈاؤن سیل اور نیلسن سیل۔ ورکنگ آف الیکٹرولیٹک سیل، کام کرنا الیکٹرولیٹک سیل کا۔ این الیکٹرولیٹک سیل کنسسٹ آف اے بیکر، الیکٹرولیٹک سیل بنا ہوتا ہے ایک بیکر سے،
ये बीकर है स्टूडेंट्स, ये वाला सही। ये बना होता है एक बीकर से विद 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, और ये डूबे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से बिजली गुजारा जा सके। एंड कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट करंट सोर्स, और ये जुड़ा होता है डायरेक्ट करंट के सोर्स से, यानी बैटरी वगैरह से। When an electric current is passed, जब बिजली गुजारते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट में से, यानी जब हम बैटरी से बिजली देंगे और इस इलेक्ट्रोलाइट में से बिजली गुजरेगा, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मूव टुवार्ड्स कैथोड, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जाएंगे कैथोड पे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जाएंगे किस पर, कैथोड पे। एंड नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड, और नेगेटिव आयंस जाते हैं एनोड पे। ये नेगेटिव आयंस जाएगा स्टूडेंट्स एनोड पे। दिस मूवमेंट ऑफ आयोनिक चार्जेस, ये जो हरकत है आयोनिक चार्जेस की थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बिजली की वजह से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, यानी बिजली का बहना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल में NaCl का मिसाल लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम देखेंगे, ठीक। तो एग्जांपल हम लेते हैं किसका, NaCl का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस का मतलब है पानी वाला। अब स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, मैं इसको ज़रा पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम डायग्राम से ही इसको डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है बीकर, इस बीकर के अंदर लगे होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक। एक इलेक्ट्रोड ये हुआ और एक इलेक्ट्रोड ये हुआ। फर्ज करें ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन है वो NaCl का है, और NaCl को जब हम पानी में डालेंगे, ठीक है, NaCl इन वाटर, तो पानी में डालने पर NaCl Na+ और Cl- आयंस की शक्ल में मौजूद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको जोड़ते हैं DC करंट के साथ, ठीक है, डायरेक्ट करंट के साथ, ठीक। अब हम इसे डिस्कस करेंगे, साथ साथ डायग्राम को भी देखते जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बिजली गुजारना एक्वस सॉल्यूशन से NaCl का, इज़ कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसे हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, यानी ये अमल हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ बीकर, ये सेल बना होता है एक बीकर से, ये सुरख वाला बीकर है, विद 2 इलेक्ट्रोड्स, और इसमें 2 ये इलेक्ट्रोड्स हैं नीले वाले, विच आर कनेक्टेड टू DC करंट, और इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं DC करंट से। ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ से जुड़े हुए होते हैं DC करंट से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब बिजली गुजारते हैं थ्रू NaCl सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से, यानी जब यहाँ से बिजली अंदर आएगा और यहाँ से बिजली अंदर आएगा, तो ये बिजली इलेक्ट्रोड से मूव करते हुए इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन मौजूद होगा उसमें बिजली चली जाएगी। तो जब बिजली गुजारते हैं NaCl सॉल्यूशन से, देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा जो उड़ जाएगा बाद में। अब ये स्टूडेंट्स कैसे पैदा होगा इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एट कैथोड, एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, और क्लोरीन गैस पैदा होगा एनोड पर जो यहाँ से बाद में उड़ जाएगा। और ये भी कैसे पैदा होगा इसे हम डिस्कस करेंगे। NaCl dissolves in water and dissociates into ions, NaCl पहले हल हो जाएगा वाटर में, एंड डिसोसिएट्स और टूट जाएगा into ions, यानी NaCl को जब हम पानी में डालेंगे बर्तन के अंदर तो Na+ के आयंस अलग हो जाएंगे और Cl- आयंस इसके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, रिएक्शंस जो शुरू होंगे
एट एनोड एनोड पर। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे इसको ले आऊँ ताकि फिर मैं आपको यहाँ सही तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, सही हो गया। चले जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए जी, एट एनोड एनोड पर। अब एनोड स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला है, ठीक। क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ये जो क्लोराइड आयन है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज वाला, ये मूव करके आएगा एनोड पर। एनोड पर दो क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, साथ में जो है क्लोरीन गैस बनेगा और वो उड़ जाएगा। तो एट एनोड क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ये देखिए क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेट ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए। इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। इसे यूँ लिखते हैं, दो क्लोराइड आयंस जब अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो फिर ये क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाएंगे। एट कैथोड, और ये जो कैथोड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स पिक अप इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर से आते हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बहते हुए यहाँ से, इन इलेक्ट्रॉन्स को वाटर के मॉलिक्यूल ले लेंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसमें से एक तो हाइड्रोजन गैस बन करके रिलीज हो जाएगा, सही, और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पर बन जाएंगे। तो कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल पिक अप ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस टू H2 एंड OH, और हाइड्रोजन और OH बनाते हैं। इट इज़ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है दो इलेक्ट्रॉन को वाटर ने ले लिया, उसके बाद ये बन गया H2 गैस जो कि उड़ जाएगा, और साथ में बनेंगे दो हाइड्रोक्साइड आयंस। नेट सेल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इधर देखिए हमने कहा था रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हुआ, और इधर हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हुआ। तो दोनों को मिलाकर कुल रिएक्शन, मुकम्मल रिएक्शन या नेट रिएक्शन कहते हैं। तो नेट रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि NaCl का मॉलिक्यूल पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो क्लोरीन था ये यहाँ चला गया और हाइड्रोजन यहाँ से उड़ गया। अब ये देखिए जी, ये Na+ ये वाला और ये OH- ये वाला, ये दोनों मिलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। नेट सेल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, यानी कुल सेल के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्लोरीन बनेगा, एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, फिर हम खालिस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल करते हैं इवेपोरेटिंग वाटर, पानी को उड़ाकर। अब रिएक्शन शोज दैट, ये रिएक्शन शो करता है H2O इज मोर इजीली रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है, देन सोडियम बनिस्बत सोडियम, यानी इस जगह की स्टूडेंट्स बात हो रही है, सही। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने नहीं लिया, हालांकि सोडियम पे भी प्लस चार्ज था, उसको लिया किसने, हाइड्रोजन, पानी ने ले लिया, और पानी से हाइड्रोजन गैस बन अलग हो गया और बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर OH अलग हो गए। तो पानी सोडियम की निस्बत ज़्यादा आसानी से क्या होता है, रिड्यूस। देन सोडियम, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज -0.828 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है पानी की वो कितना है, 0.8, वाइल दैट ऑफ सोडियम इज -2, और सोडियम का कितना है, -2। तो स्टूडेंट्स -2 बहुत कम है बनिस्बत 0.8 के, तो इसलिए पानी का रिडक्शन पोटेंशियल चूँकि ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।